Hello and welcome to this video. This video is called as the manifestation code of sun and moon. You may be in a job or you may be unemployed. You're very well qualified and you want something to do in this life. You aspire, you have a goal in mind. But you do not have that. So what can we do? There are two things which can be done in the two different levels. One is in the spiritual level and another is the physical level. So first is your wish, is your desire. Now that should have a power. Now that should be backed by some kind of a spiritual power. So what happens? All the things we cannot do, all the things is not possible by a human being, but we can always ask for a help. We can always ask for a help from something, from an entity, from a consciousness which is much more higher than us. So that is called as your soul journey. So what is the meaning of this soul journey or taking help from the higher souls? Because we have a particular soul standing. Everything in this universe has a particular soul standing. If you look for a very small kind of a plant, it has a soul standing. The animals are having higher soul standing than the plants. The human beings have higher soul standing than animals. Now, if we go like that, like the sages, the saints have higher soul standing than human beings, then demigods have higher soul standing, then God, like this, there's a soul standing. So suppose the most powerful thing in our body is our soul. Okay, we are just not a single dimensional human being. We have got a body. This is the physical body. We have got a mind and we have got a soul. Now soul travels from one lifetime to other. Okay, and soul has a lot of experience and soul is the boss. We have a soul. Everything in this world has a soul. So when we are unable to do something, when we are unable to see some results in our life, then what we should do? We should always pray to souls whose level, who are in higher soul standing than us. And why not we look into something which is existing even before we are born, and it is the soul mind body of the sun and the moon. Today I'm going to discuss about this manifestation code of sun and moon. We will try to know all the 9 planets. What are these 9 planets and what are their which are the planets and which are the numbers which are associated with these 9 planets. Also specifically we will talk about how can you use the consciousness, the power of the sun and the consciousness of moon to fulfill the manifestation code. If you have any desire, anything you want to achieve in the life, how can you pray to them? And why should you pray to them? That is today's video. This video may be also in Hindi language. Just check the time stamp and just also hear the Hindi version of this video. And just let me share my screen so that we understand much more better. So let me just share this. So this is all about the manifestation code of the sun and the moon. So we know there are 9 numbers, especially when we learn numerology, there are 9 numbers. Now numbers, number 1 represents sun, number 2 represents moon, number 3 is represented by Jupiter, number 4 is represented by Rahu, number 5 is represented by Mercury, number 6 is represented by Venus, number 7 is Ketu, number 8 is represented by Saturn, and number 9 is represented by Mars. Now, what is the consciousness of sun? Sun is Aditya. Whatever you want, whatever is given to you in all your bhavas, in every aspect of the life, the deity which blesses actually the giving part of every aspect of the life is Aditya. Adityas are the giver. They are giver. You want something in your life, you can ask them. You can ask as appropriate. Always use the word as appropriate whenever you ask. Don't just give command, I want it. So as appropriate, you can pray to Aditya for asking for something in any aspect of life. Today we're going to concentrate more on the career part. That in career, if you need a job, if you are already in a job and you want something, so how should you pray? So sun carries basically Fa energy, the father's energy. And it's like it also represents your soul power, because sun is also the significant of the soul. So it is because of the sun the whole world we are able to survive. Why? Because you just check it out every time, because the sun rays falls on the plants and then the photosynthesis takes place, we get food and it comes under the food cycle. So
we serve, and even the changes in the season and everything is only because of the sun. And what is moon? Moon is, on the other hand, moon represents our emotion. Moon represents is a kind of a reflector of our consciousness. Moon is the caring entity. Moon represents also the water element, and moon also represents the Ma energy. And it is said in the Vedas that moon carries all the devatas energies of all the devatas inside it. It is very, very important. I will quickly go through all the other planets. Like number 3 represents Jupiter. Jupiter is for wisdom, your knowledge. Rahu is for, I'm taking the positive part of all the planets at this moment. Rahu represents innovation. Mercury represents your subconscious mind. Venus is for your comforts. Ketu represents your moksha karak. It's a planet which eventually helps you attaining moksha, enlightenment. Saturn is for your hard work. Mars is your fight back mechanism. So we are not going to go to each and every detail of the other planets, but here we are just taking the sun and the moon. Suppose you have a wish, and you want, as appropriate, that wish should get fulfilled. Number one thing, you should be very clear why you want something. Because if you are clear in why you want something, then the manifestation will take place much more faster than you can even imagine. Now that is very important. That is why I have done my course, which is called as Discovery on your source blueprint. That why are you born in this world? Now, if one can discover that, that is absolutely like crazy things will happen. Because if you are in alignment with the source, if your birth or if your goals are in alignment with the source, what will happen? Source will give you all the resources with you so that the manifestation can take place faster. But for people who are not in that league, or people who are not into spiritual alignment, what should they do? Now, how should they know that what they have to do? They can send a request to the higher world. They can give a request to the realm of the sun. As sun is the giver, he gives, he showers his blessings, and he represents father's energy. So how should we pray to sun god? What is the method that we should be pray to sun god? Remember this thing, that to achieve anything, for anything to manifest in the world, there are two energies required. For anything to manifest in the world, there are two energies required. One is father's energy, one is mother's energy, yin, yang. Even if you see your creation, your creation took place because of father and mother, anything. So in achieving something, in manifestation of something, two things are required. One is the spiritual blessing, the spiritual blessing of the higher realms, higher energies, and second is your action. So this I am talking and focusing on what spiritual prayers you should give. How should your soul communicate with the higher energies? And here we will take two higher energies, the greatest of the two energies, the luminaries in the heaven, that is the sun and the moon. A very powerful thing. So as I said, sun is the giver, he is God, and behind sun is another devata called as Vahani. So whenever you pray to sun god, what happens is that you pray, you are releasing energies. Actually, everything is a frequency and vibration. So you want something, you're releasing energy to the universe. So energy is going. So when you pray at a particular time to sun god, you are releasing an energy, and from sun the energies are taken by Vahani and it is taken to the source, and from there, as appropriate to your karmas, the energies actually come back to you. So how to connect this code with the moon? Moon is the caring energy. Moon is your emotional energy. To achieve anything, it also needs an emotional power. It is just not your prayer. The prayer should be from the bhava. The prayer should be from the heart. You should use your bhakti and the power of the bhava to push this frequency higher if you need something in this world. So that is why the emotional power is very, very important, and moon represents that. And so if you really wanted to achieve something in this life, you should put as much as emotional power. You should put as much as the power of the heart inside that. That is very, very important. Also, it is said in the Vedas and the Puranas that water carries memory. Water also carries all the devata power, consciousness of all the devatas inside. So if you can somehow use this power of the water, the moon, and somehow pray to sun, that means you are actually connecting the sun and the moon. Understand it very, very carefully.
I am repeating again, to achieve anything in this life, you need a far ma energy. You need a father's and a mother's energy. You need a yin and yang energy. If you have a yin and yang energy, some manifestation may take place. So here the yin and yang energy are the sun and the moon. So when you connect this code, when you connect sun and moon together, how are you doing it? You are if you can pray, I exactly give you the step how to pray, but I'm telling, if there is a method that you use water to pray to sun god, then a connection takes place, and there is this activation of certain things which is happening in your life, in your spiritual body, in your channels. Something happens, certain frequency change can take place. And if you can do that properly, there is a method to it. I'm going to explain you right now in more details. But remember, sun represents father's energy, moon represents mother energy. Sun is the giver. He can bless you, he can give you, he actually gives you everything in different dimensions. It depends on your karma, it depends on your mind, whether your mind can receive, can generate a frequency which can absorb or take that particular kind of a blessing. So if you can pray to sun using moon, then the miracle of manifestation is possible in your life. So I'm going to tell you how you can do this prayer to sun god. Number one is that if you observe sun, watch him. He is the master of your time. And in astrology or numerology, timing is very, very important. If you can, because if you can master this time, you are actually activating your 10th house and the 11th house even in your astrological chart. So there are two planets whose blessing tremendously increase. If you can do this prayer at a particular time. So remember, start this prayer only if you think you can do it at a particular time. Choose a time, whether you want to do it at 6 a.m. If you can catch the early sunrise, that would be wonderful. The first sunrise which falls on the earth at your region, at your local region, then it will be wonderful. Choose a timing, but with a determination, maintain that timing. Suppose you have chosen 6:30 a.m. in the morning, then every day try to do this practice, try to do this prayer on the very same time. Don't even miss a second on that. Try to be there and do this practice, because if you can maintain the strict discipline of the timing in this case, then your sun as well as your Ketu will tremendously get activated. Ketu is your moksha karaka. It's everything is the time based, the kala. Even Saturn will also start getting activated in a positive way in your life. So at a particular time, you go to a place where you can see the sunrise. Maybe you go to your terrace or an open field and take a lota bowl utensil. So a kind of a pot, small copper pot, if you can take. In that you fill that copper a copper pot with water, a small lota pot with water, and take some red flowers into it, maybe rose or maybe hibiscus, java fool inside that. And you can start the prayer to sun god. You can pray to sun god. So your water is representing the moon, the lunar dimension. Sun is the god, the devata, who is the giver, Aditya. And you are offering him the red, which is his color, to him. So this is the intention. So what you're going to do, you're going to start the prayer at a particular time every day. It is advised that if you're looking for a job or a job change, you should do it at least 42 days at a stretch in a very disciplined way. So start on a Sunday, any Sunday you take, you start on a Sunday and then proceed accordingly. So you take the lotus bowl, sit there. Before praying to sun god, there is another mantra of sun god that you should do. That is the Gayatri mantra. So I will just show you the Gayatri mantra below. So there is for the mantra Gayatri. Gayatri you have to chant 3 times. Now the Gayatri is, where everybody, you can just go to internet check, or I have given it here. It is Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. So there's a meaning of this. It's like, this is the general meaning. There are many versions of this. It is said that we meditate on the most adored Supreme Lord, the Creator, whose effluent divine light illumines all realms, physical, mental, and spiritual. May this divine light illumine our intellect.
So but there's a very simple thing, every mantra is a kind of a vibration and frequency. To do any manifestation mantra, what we first require, see, we pass through various experiences of the life, not only in this life, but in the past lives also. We have various sort of experience which we gather. So actually that clogs, that blocks many dimensions of our brain. So for achieving something in our life, we need to have release a particular kind of frequency. But our experiences of our life actually blocks many of the areas of our brain, and it is filled with not so good energies. It is filled with not so good positive energy. So we need to either empty the brain before we want to add up some programming inside our brain. Here we are praying to very high level being. We are praying to a very high level consciousness in the heaven. So what should we do? That is why first this Savitur mantra is actually the sun mantra. Before doing the main mantra, before talking, before soul communicating with the sun for our main prayer, we should first do the vibration. We should first chant the Gayatri mantra. We should first release the Gayatri mantra so that it goes inside our body and it vibrates and removes the pre-programmed not so good frequencies in our brain. Understand it very clearly. That is why it is very important to, before you do something, or you can use even a Vishnu mantra. Why Vishnu mantra? Vishnu is represented by number 5. It is Mercury. Mercury is your subconscious. One of the characteristics of the Mercury subconscious. In our subconscious, we generally program our subconscious in not so good thoughts, bad, negative, lower frequency thoughts. Now it is very important to first clean that thought in our mind. So you can do simple Namo Vishnu, Namo Vishnu, Namo Vishnu. So Vishnu will remove the poison from your mind, which is already programmed mind. To achieve something, we need to have a clean slate. We need to have a clean mind. We need to clear so that the higher energies can travel inside our system. So that is very, very important. So that is why before doing the main Surya mantra or communicating with Surya, either do Vishnu or you do 3 times Gayatri mantra. It's a very powerful mantra. So it's a powerful mantra, and it is also as a mantra of the sun god. It is kind of a vehicle that will give you frequencies and energy vibration that will activate your heart, your message center. Message center is a very important center which can, it will release, it will create a good vibration in your soul, mind, body. Here it is saying the physical, mental and spiritual realms. It is going to affect, it is going to clean up, it is going to purify first. So that when you do the main mantra, the blessings of the sun and the moon can enter in your system. So after that, after doing 3 times Gayatri, you can offer 3 times water. The same water you can offer. Make sure that the water doesn't fall in your foot, but it can go in the Bhu-Devi, in the earth. It can go. So there are 2 Devis of the Vishnu, the Sri Devi and the Bhu-Devi. So it can go in the Bhu. Mother Earth is also very important for manifestation because you get a lot of energies from the Mother Earth. So you can even be barefoot, earth yourself, so that the energies of the earth can also come in your body through the root chakra, whatever you want to do. After doing this 3 times, you should chant Surya mantra, the one of the best Surya mantra, and you should chant Surya mantra 7 times because Surya has the 7 visible rays of the Vibjur: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So what is this mantra? You can do another mantra, which is Om Japa Kushumam Shankasham Kashyapeyam Mahatutim Tamorim Sarva Papagnam Pranatashmi Divakaram. This mantra also you can chant 7 times. The meaning of the mantra I am explaining you. O Divine One, who is the magnificent as a hibiscus flower, to you, the blessed son of Kashyapa, how powerfully radiant. To you, the fierce enemy of darkness and the one who washes away all sins. To you, brilliant infinite light, I humbly hope. The washes away all sins, that is very, very important. What is the sin? Sin is the embedded program in us. Sin is the embedded program which is traveling from life after life. We have done something wrong in our past life. That consciousness, that information from the Akashic record in the form of darkness is somewhere stuck in our soul, mind and body, because of which the frequencies cannot radiate from us, or we cannot become a good receiver of the higher frequency which is coming to us. So when we pray this vibration, we are actually request the all-powerful sun god, who is the Aditya, the giver, to remove those darknesses from our life so that you wash away all the sins and you give us all the blessings which is required for our life.
and then just release a small intention. Just feel an intention what you want, that what you, why are you doing this? Are you doing this for your job, or you want doing it for a job change? So before that you should be very clear. So just send a release information to the sun god. Just as always use feel the word as appropriate. Don't command him. Just in your mind, just feel that you are doing it for. Don't say that I want a job like that. Don't use the word. What is good for you, the higher realms know. So don't command them. Don't, just give a feeling in your heart that you are doing this for getting a job, for getting, or for a job change, for a better. But your intention should not be a selfish intention that I want a huge money, I want this thing. No, the best things are when you want a job change. Now, is your job going to solve somebody else's problem? Is your job going to solve many people's life? Is your job going to change many, make the world a better place? Now that should be your intention. Now the more better the intention, if more people's life, if more souls can be touched by your by the job or the service which you're doing, then it is going to be a kind of a miracle. Okay, so also remember, today the world is of competition. You also need to check your preparedness. Doing the mantra is I said, is the two things you should do. You should spiritual do a practice, plus you should also in the practical world you should take your decision, prepare yourself and all also simultaneously. So just release an intention while doing this mantra. 3 times you do the Gayatri, 7 times you do this mantra, and and after doing that, just bow down to and say thank you, thank you, thank you 3 times to sun god. And you can say to all the gods, because all the gods are there in water also. So Sarva Dev Devibhaya Namaha, you can use the mantra also. So also there is, if you don't want to say, you do not have time to chant this big mantra and you have a problem in pronunciation, you can simply say Om Surya Devaya Namaha. Now if you are somebody who generally use English language, you do not know sun, you just speak sun but you do not know Surya, I just want to tell you something. Always for praying to sun god, don't use the word sun god, whichever language you are using, just say Surya. Now when you have, if you do my numerology class, and especially on numerology, I've explained about the binary systems, that in the binary system the Surya word has much more power than sun. Sun has Hashanta, so the Surya has much more higher power as a mantra. So you can simply chant Om Surya Devaya Namaha, Om Surya Devaya Namaha, Om Surya Devaya. 7 times you can chant this mantra. Before that you should do the Gayatri, or you can also do Surya Gayatri, Om Bhaskaraya Vidmahe Divakaraya Dhimahe Tanno Surya Prachodayat. Now these are various variations. You can do whatever variation you feel like. Om Aditya Vidmahe Divakaraya Dhimahe Tanno Surya Prachodayat. So there are different versions of this. Now here it is saying the meaning is, we know Tejasvi, we meditate on the shining, may the sun inspire us. So this is the meaning of this. And as you finish, as I said, after first you're doing 3 times Gayatri with the water, with the flower, and then you're doing 7 times either Japa Kushuma mantra or Om, or 7 times Surya Devaya Namaha, or you can do 7 times any Surya Gayatri mantra, whatever your heart desire, whatever your mind says. But do it for 42 days. But start this thing exactly at the same time every day. Don't change it. If you miss one day, start in a Sunday. If you miss any day, repeat again this 42-day practice. So that should be. It is like a sadhana. You are actually disciplining your horses of your inner and outer senses. It's a very powerful thing. You're actually preparing yourself for that. So after finishing this, you can say Sarvadev Devi Bhaya Namaha. So this is a very important practice. If you need anything else, just write down in the comment and I will get back to you if you have any confusion. You can use any sort of red color flower. You can put as many things as possible, but here I'm giving you simply. You can put honey also, you can yellow flower also. What do you give? You're giving redness, you're giving the power, you're giving the it's like you're giving something for the giver, for the Aditya to give you something. It's like flowers are like virtues. So this is the practice. This is like the manifestation code of the sun and the moon.
pray to sun god using the power of the ambu, the water, which has all, it is said that water has all the devas inside. So put the intention in the water, you're putting the intention with the mother. So it is like the mother's energy. You're putting the intention, your intention of the heart in the mother's energy and praying it to Lord Father. So it is like you, when you need something in a family, father is very strict, he's a disciplined, son is a strict, son is a disciplined, he's called as a crude planet. But if you have to get something from the father, what you generally do, you just go to your mother and tell her, mom, I need this. So it's the mother who takes the thing to the father and asks him to give. There's a similar thing is happening. You're praying to the moon, and keep yourself open. After that, you keep yourself open and wait for all the signals of the universe. You try yourself. Like many people do the practice. If you just stay back, then nothing will happen. Then what you need to do, you need to keep checking with the networks. You need to apply. You just need to wait for the signals. Check in the Facebook or in the LinkedIn or in other medias, that if there is a kind of, check in the newspapers if there is thing. Talk to your friends, open your networks up, do the work, and be confident of giving interviews and all. So that is the method. And simultaneously, I also have, like in my, I generally give it to my source guidance program student, 21 days manifestation meditation. You can simultaneously practice that also. You should keep your subconscious powerfully strong to attract something. Remember, it's the world of frequency. You are first changing your frequency, removing all the negative programs which you already got, and then you're praying to a soul which is much more higher, which is powerful, which is the giver. He is only for sun god, the existence is possible. So he loves you. Sun, moon, planets, stars, galaxies, universe, heaven loves you and want your growth. So that's why what is devatas? Devatas are those energy which protects you, which loves you, which helps you in your growth. And so these are the devatas which you are using to fulfill this manifestation miracle. Practice this, do it. Just leave your comments. If anybody gets something after doing this, I will be looking forward. I will be really excited to see all this kind of feedback. Thank you for watching. If you want to continue watching the Hindi version, please continue to watching. Thank you so much. May source, God, numbers, sun, moon bless you beyond your comprehension, and bless your manifestation desire, whatever you have. Thank you so much for watching this video. नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है जिसका नाम है द मैनिफेस्टेशन कोड ऑफ सन एंड मून और मैनिफेस्टेशन कोड ऑफ सूर्य एंड चंद्र। तो मैनिफेस्टेशन कोड का क्या मतलब है? आप जीवन में कुछ चाहते हैं। मैं स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनको जॉब की तलाश है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो कोई एक अच्छा किसी सब्जेक्ट में उन्होंने स्किल डेवलप किया है, कुछ चीज सीखा है, बट अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनके पास अभी जॉब नहीं है। इंटरव्यू दे रहे हैं बट कहीं जॉब मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा। तो आप ये करके देख सकते हैं। ये बहुत पावरफुल एक मंत्र है, टेक्निक है बेसिकली, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मैं ये थोड़ा न्यूमरोलॉजी के थ्रू आपको सारी चीजें बताऊंगा और साथ में मैं ये समझाऊंगा कि आप किस तरह से इस चीज को करें। कि मैनिफेस्टेशन कोड क्या है, सन क्या है, नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, नंबर 3 क्या है, सन क्या है, मून क्या है, ये नंबर 1 और 2 को हम किस तरह से जिंदगी के अंदर यूज कर सकते हैं। सूर्य और चंद्र की जो ऊर्जा है, इसको हम किस तरह से अपने जीवन में ला सकते हैं, ताकि जो चीज हम सोच रहे हैं वो अगर हमारे सर्वोच्च हित के लिए हो, इफ इट इज फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ यू और द पर्सन्स ऑल अराउंड यू और द सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा, वो किस तरह से मैनिफेस्ट करेगा। तो सूर्य क्या है, चंद्र क्या है? सूर्य आदित्य है। जो भी चीज आपके जीवन में जितनी भी भाव है, उनके देने वाले, उस भाव के इज अ गिवर। जो भी चीज आपको उसमें चाहिए, जो देने वाले आशीर्वाद देते हैं, जो देने वाले ब्लेसिंग्स आपको देते हैं, वो आदित्य है। सो 12 भाव के वो 12 भाव में आपको पूर्णता देते हैं, 12 भाव में आपकी ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपको जिंदगी में जो चाहिए उसकी, वो आपके कर्म के हिसाब से अगर वो सही रहे तो वो आपको बहुत सारी चीज दे सकते हैं। तो आदित्य एक गिवर है, सूर्य एक गिवर है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके पास बहुत बड़ी मेमोरी है, जो ऑल्सो रिफ्लेक्टर का काम करता है, जो हमारे
पानी के तत्व को भी रिप्रेजेंट्स करते हैं। उनका जो देवी है चंद्रमा के पीछे, उनका नाम है अम्बु। सो अम्बु क्या करते हैं? अम्बु इज द वाटर एलिमेंट। ये केयरिंग एलिमेंट है, हीलिंग एलिमेंट है। ये हमारे इमोशन को दर्शाता है, हमारी हृदय की जो पावर है, हमारी हृदय की जो शक्ति है, हृदय से जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती है उसको दर्शाता है। सो इमोशन को बोला जाता है एनर्जी इन मोशन। जो हमारे भाव है, जो भाव की जो पावर है, वो हमारी एनर्जी, हमारे हमको एक ताकत देते हैं। हमारी जो इंटेंशन है उनको एक ताकत देते हैं। तो इमोशंस ह्यूमन बींग्स के पास है। तो इमोशनल एनर्जी यूज करके हम कोई भी चीज की, कोई भी फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा ताकत दे सकते हैं। तो अब इसको कैसे करें? तो मैं जल्दी से अपना स्क्रीन शेयर करता हूं और देखते हैं कि ये मेथड क्या है और क्या क्या चीज है। न्यूमरोलॉजी में हमारे 1 से लेकर 9 तरह के नंबर होते हैं और हर एक नंबर के पीछे एक ग्रह होते हैं, एक प्लैनेट होता है। प्लैनेट के पीछे एक देवता होते हैं। इसमें मैं बताऊंगा सब प्लैनेट्स के बारे में, बट इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सूर्य और चंद्र की जो ताकत है उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो नंबर 1 जो है वो सूर्य है, सन। नंबर 2 इज मून, चंद्रमा। नंबर 3 रिप्रेजेंट जुपिटर। तो सन क्या है? सन आदित्य है, तो गिवर है। मून क्या है? हमारे इमोशन को दर्शाता है। जुपिटर ज्ञान, विजडम। नंबर 4 इज राहु। राहु इज इनोवेशन। आप जिंदगी में एक काम कितने इनोवेटिवली करते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चीजें बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हैं राहु को लेके, बहुत सारे लोगों के दिमाग में डर होता है, शनि, राहु, केतु। बट अब हम समझ लेते हैं ये क्या चीज है। हम राहु केतु में ज्यादा नहीं लेते, बट आप एक चीज समझिए, अगर राहु कहीं पे हो रहा है, आपके चार्ट में आ रहा है, कहीं पे आ रहा है, तो आपसे एक कहा जा रहा है कि आप चीजों को इमोशनली लीजिए। मरकरी हमारी सबकॉन्शियस माइंड है। हमारी सबकॉन्शियस, हमारी है कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस माइंड होती है। हमारी माइंड की डिफरेंट लेयर होती है। सबकॉन्शियस, आप जो भी है आपके सबकॉन्शियस की वजह से होती है। तो मरकरी नंबर 5 सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। 6 शुक्र, आपकी जितनी कंफर्ट, आपकी जिंदगी कितनी कंफर्टेबल है। 7 केतु, केतु आपके मोक्ष कारक है। आपकी जिंदगी, मोक्ष का मतलब है आपको एनलाइटनमेंट देना, आपका सोल जर्नी को ऊपर करना, दैट इज मोक्ष का काम है। 8 सैटर्न, शनि का काम है। शनि में हार्ड वर्क करवाते हैं। और मार्स, मंगल फाइट बैक, मतलब आप जो लड़ सकते हैं, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में है, जो ऊर्जा आपको फाइट करवाती है लाइफ के अंदर। तो अपने चार्ट में आपके स्पेशल नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ में और पूरी डेट ऑफ बर्थ का एडिशन करके देख सकते हैं कि ये सारे नंबर्स है या नहीं। ये मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको अगर डिटेल में जाना है, मैं अभी स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ, तो आप एक बार, मैं सिर्फ सजेस्ट करूंगा, आप मेरे कोर्सेस या मेरी वेबिनार्स के जो आर्काइव्स है उसको आप एक बार देख सकते हैं। उसमें सारी चीजों के बारे में मैंने बहुत बार बोला हुआ है। तो आप जब बार बार चीजों को देखेंगे, अगर आपने मेरे कोर्स को एनरोल किया हुआ है, तो आप कोर्स में इस प्लैनेट्स के बारे में, देवता के बारे में मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन में दिया है। बट यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक काम बोल रहा हूँ आप लोगों को, दैट इज कि आप अगर एक कैरियर चाहते हैं, आप चाहते हैं, आप एक जॉब में हैं, एक नया जॉब चाहते हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप उस जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, नया जॉब से, तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कौन सा प्रेयर कर सकते हैं, किसको प्रेयर कर सकते हैं? या आप अनएम्प्लॉयड है और आपको एक जॉब चाहिए, आपके पास एक स्किल है, पावर। नंबर 1 एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप मैनिफेस्टेशन करें तो 2 तरह की हमारी मैनिफेस्टेशन होती है, 2 तरह की हमारी इच्छा होती है। एक इच्छा होती है हमारी सेल्फिश इच्छा बोलते हैं, जो हम अपने लिए सोचते हैं, मेरा जॉब, मेरे पास इतना पैसा, ये घड़ी, ये मोबाइल, ये गाड़ी। अच्छा है, सेल्फिश होना भी बहुत जरूरी। बट आप एक चीज याद रखिए, आप कुछ काम करने के लिए ना आपको वर्च्यू की जरूरत होती है। हेवन की वर्च्यूज अगर आपके पास है, आपके वर्च्यू बैंक फुल है, तो आपको चीजें आसानी से मिल जाती है। आप वो सारे इवेंट्स अट्रैक्ट करते हो अपनी जिंदगी के अंदर, जो इवेंट्स आपको वो डिजायर आपकी फुलफिल करती है। बट एक चीज याद रखिए, अगर आपका डिजायर, अगर आपकी सोच ऐसी हो जिसमें बहुत लोगों का लाइफ भला हो, आप एक ऐसा जॉब करें जहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हो, आपके पास एक ऐसी टैलेंट है, आपके पास एक ऐसा वोकेशन है, आपने एक ही ट्रेनिंग ली है जिससे आपका 1 नहीं 2 नहीं काफी लोगों की लाइफ पर परिवर्तन कर सकते हो। पृथ्वी में आप कुछ परिवर्तन ला सकते हो, पूरी ब्रह्मांड, पूरी दुनिया में आप परिवर्तन ला सकते हो। तो याद रखना, हेवन, ईश्वर, ब्रह्मांड, सोर्स ऐसे ही सोल्स को लेके ही काम करता है। यू शुड बी रेडी। और दूसरी चीज, आपका माइंड में कोई प्री प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। तो आपका नंबर 1 गोल जितना बड़ा होगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट उसकी पोटेंशियल पॉसिबिलिटी, स्टेप्स आपको मिलता जाएगा। ईश्वर आपको रास्ता, ईश्वर बोले, हेवन बोले, हायर कॉन्शियसनेस बोले, आपकी सोल कॉन्शियसनेस बोले, आपको रास्ता दिखाता जाएगा। और दूसरी चीज हमेशा याद रखिएगा, आपकी सबकॉन्शियस लेवल में, आपके ब्रेन में कोई प्री प्रोग्राम तो नहीं है।
काफी बार लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी चीजें नहीं मिलती, उनके पास सारी चीजें होती हैं बट उनको क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में कहीं एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग बना के रखता है कि ओ मेरा तो लास्ट मोमेंट में जाके जॉब अटक जाता है, मेरे तो लास्ट मोमेंट में जाके ये हो जाता है। इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं करें। आप जब भी इंटरव्यू देने जाए उसको एक पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी इमोशन के साथ, पूरी भाव के साथ उस इंटरव्यू को दे। आगे पीछे मत सोचे क्या होने वाला, आप अपने कर्म पूरी 100% करें। देखिए हमारे को दो काम करने होते हैं हमेशा, कोई चीज अचीव करने के लिए हमें इन यंग एनर्जी की जरूरत होती है, एक फादर एनर्जी, एक मदर एनर्जी। अगर हम दूसरे एंगल में सोचे, अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो हमारे पास भी एक सोल माइंड बॉडी है, ठीक है। हमारा बॉडी, हम सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे पास शरीर है, हमारे पास मन की ताकत है, हमारे पास आत्मा की ताकत है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा होती है, आत्मा एक सोल, और हर एक आत्मा, हर एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट सोल लेवल में होता है। मैं हर एक वीडियो मैं बहुत सारे वीडियो में सोल स्टैंडिंग के बारे में बात की कि हर एक का एक सोल स्टैंडिंग है इस दुनिया के अंदर। जो छोटा सा एक पौधा है उसका एक सोल स्टैंडिंग है, जो उससे ऊपर जो एक एनिमल है उसका सोल स्टैंडिंग उससे ऊपर है, ह्यूमन बींग्स की सोल स्टैंडिंग उससे ऊपर है, हमारे ऋषि मुनियों की सोल स्टैंडिंग हमारे ऊपर है, उससे ऊपर देवताओं की सोल स्टैंडिंग, ऐसे करते करते लेयर्स बने हुए हैं। तो हम जब कोई काम खुद से कर रहे हैं और वो काम हमें लगता है कहीं हमारी ब्लॉकेजेस हो रही हैं, जैसे हमारे अंदर ब्लॉकेजेस डिफरेंट लेवल में आती है। सोल बॉडी में, सोल लेवल, शरीर के लेवल में हो सकता है आपका लीवर खराब है, आपके शरीर में ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो आप वो एफर्ट नहीं मार पा रहे जिस एफर्ट से आप वो काम करोगे। वैसे ही आपके मन में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, आपने नेगेटिव प्रोग्रामिंग करके रखी है अपने माइंड के अंदर और उस वजह से आपको चीजें नहीं मिल रही। तो आप इस सारे लेयर्स में थोड़ा अवेयर रहिए। सिमिलरली सोल ब्लॉकेजेस, सोल के अंदर कर्मा होते हैं, तो कर्मा ब्लॉकेजेस भी आपको स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह की हरकतें जब होती है जीवन के अंदर, इस तरह की जब परिस्थिति आती है, तब आप क्या करें? तब आप आपसे जो हायर सोल स्टैंडिंग है उनको प्रे करें। इसीलिए तो हम मंदिर जाते हैं, इसीलिए तो हम देवता को प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर एज अप्रोप्रिएट हमें ये चीज अगर हो जाए तो मेरे जीवन में। तो जब भी प्रार्थना करें तो आप अपने से हायर एनर्जी को प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे भी हम दो हायर एनर्जी, जो हमसे हायर एनर्जी है, जिनकी फ्रीक्वेंसी हमसे कई गुना ज्यादा है, तो उनको हम प्रे करेंगे। किस तरह से करेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको, बट एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप कोई चीज मांगे जस्ट दिल से एक इंटेंशन छोड़े कि क्यों आप कर रहे हैं, एकदम उनको ऑर्डर मत कीजिए मुझे ये नौकरी चाहिए। वो हमसे काफी बड़े हैं, वो हमसे मतलब हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उनकी रिगार्ड करनी चाहिए, उनके सामने हमें झुकना चाहिए, बो डाउन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, बट कभी भी ऑर्डर नहीं करना चाहिए। तो हमेशा बोले, अगर ये इंटेंशन छोड़े, उनको आपका मन की तरंगे पकड़ना आता है तो इंटेंशन छोड़े, अगर ये आपके सर्वोच्चम हित के लिए हो तो ऐसा ही हो, ये करे कहीं उनको कि प्रभु एज अप्रोप्रिएट मुझे ये दिलवा दीजिए। एक इंटेंशन छोड़े, बोलने की भी जरूरत नहीं, वो आपकी जो भावनाएं हैं उनको पकड़ सकते हैं, वो आपकी वेवलेंथ पकड़ सकते हैं, वो आपकी सोल लैंग्वेज, आपकी आत्मा से निकली हुई जो आवाज है, आत्मा की निकली फ्रीक्वेंसी, उनको पकड़ सकते हैं। यही सोल वर्ल्ड, यही जो हेवन वर्ल्ड है, इसकी दुनिया का बहुत बड़ा एक मिरेकल बोल सकते हो आप है। अभी हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो है कि आप कौन से देवताओं को, जो देवता आपके सामने है, आंखों के सामने है, वो देवता ही हम बोलेंगे बिकॉज उनकी सोल स्टैंडिंग हमसे कई ऊपर है। वो एक है सन, सूर्य आदित्य है। आपको जिंदगी में कुछ भी चाहिए, ही इज अ गिवर, वो देते हैं, आपके सारे भाव में वो देते हैं। वो एक फा एनर्जी है। हमारे पास दो एनर्जी होती है, फादर एनर्जी, मदर एनर्जी। तो फा एनर्जी हमारी जो सोल, आत्मा की पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सन सबसे पावरफुल चीज है हमारे सामने, आंखों के सामने एक ऐसे देव है जो पूरी ब्रह्मांड को चला रहे हैं, क्योंकि बिना सन के कभी ब्रह्मांड पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य की किरणें से ही तो फोटोसिंथेसिस होता है, वहीं से फल बनता है, वहीं से जो फूड चेन है वो चलता है, सूर्य के वजह से ही दिन रात बदलता है, सूर्य की वजह से सीजन चेंज होते हैं, गर्मी होती है, हम बोलते हैं ओ कितनी गर्मी है, उसके बाद आता है रेंज, वो बोलते हैं ह्यूमिडिटी कितना बढ़ गया, बट उसी के बाद ही आता है क्या टेक्नोलॉजी। ये हमारी पृथ्वी, भूलोक और ये सूर्य के बीच की जो ये टेक्नोलॉजी, क्या बढ़िया चीज है, इसी से सारी चेंज हो रही है। मतलब आपको कोई पंप की भी आवश्यकता नहीं है कि पानी को ऊपर कैसे उठाए, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाया है सूर्य ने, ऐसे उनको पास दूर होने से कितना बड़ा काम हो जाता है। तो ब्रह्मा, हमारी पृथ्वी की हम कल्पना ही नहीं कर सकते किसी भी सृष्टि की अगर हम सूर्य को नहीं पढ़े। तो सूर्य सबसे पावरफुल देव है। सूर्य के पीछे जो देव है वो वाहनी। अगर आप सूर्य के साथ सोल कम्युनिकेट करते हो, आत्मा से आत्मा की बातचीत करते हो, तो आपका जो ये इंटेंशन है, जो फ्रीक्वेंसी आप रिलीज कर रहे हो, उस फ्रीक्वेंसी को सूर्य के पीछे जो देव है, देवी है, वो है वाहनी। वाहनी उस ऊर्जा को लेके वो
सोर्स के पास चली जाती है, पर ब्रह्म के पास चली जाती है, वहां से फिर वो एनर्जी लौट के आती है। व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू विद कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपका कर्म देख के वो लौट के आता है। तो ये पावर है, ये एक चीज है जो आप सूर्य देव की कृपा पाने के लिए सूर्य की पूजा कर सकते हो, सूर्य के साथ सोल कम्युनिकेशन कर सकते हो। सूर्य फादर की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, तो फादर के साथ कोई अगर बातचीत करनी है, और सूर्य बहुत डिसिप्लिन प्लैनेट है, क्रूर ग्रह में आते हैं, ही इज अ लीडर, लाइट देते हैं, तो सूर्य फार रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ में चंद्रमा हमारे इमोशंस रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी रिफ्लेक्शन, हमारी रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा नंबर 2 केयर रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है और करते हैं, और माँ एनर्जी, मदर की एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोचिए, अगर एक परिवार है और आपको फादर से कुछ हासिल करना है तो किसके पास जाना चाहिए? अगर फादर स्ट्रिक्ट हो, डिसिप्लिन हो, वो चाहते हैं कि उसका जो बेटा है, उसकी जो जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, उसके पास सारी डिसिप्लिन तो अच्छी ऊर्जा है। बट अगर फादर से कुछ चाहिए तो आप किसके पास जाओगे? जनरली आप माँ के पास जाके बोलते कि मम्मी मुझे ये चीज चाहिए, तो माँ उस ऊर्जा को लेके जाती है। तो सिमिलरली ये जो मून है वो मदर एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। और मून में और एक चीज है, बोला जाता है वेदों में कि मून के अंदर अपनी एक मेमोरी है, कॉन्शियसनेस है, एक मैनिफेस्टेंट की खुद की ताकत है, और मून के और ये पानी के अंदर बेसिकली सारे देवों की वास होता है। और हमारे बॉडी में 70% पानी है, धरती के अंदर भी पानी सबसे ज्यादा है, और पानी प्रोग्रामेबल है, पानी हमारी बात सुन सकती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो अगर पानी के अंदर इतनी ताकत है, पानी के अंदर इतनी देवता है, तो क्या हम इस सर्किट को कंप्लीट कर सकते हैं? ये कोड को हम कंप्लीट कर सकते हैं? यही है कोड कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर पामा ऊर्जा जुड़ जाए, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर उसके अंदर डाल दे, अपनी इंटेंशन अगर इस प्रक्रिया में डाल दे, तो उसकी मैनिफेस्टेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यही चीज है। तो आप इसको करें कैसे? इसकी एक प्रक्रिया है, मेथड है इसका प्रेयर करने के लिए। आप सन को प्रे कर रहे हैं, सारे देवताओं को पानी को यूज करके उनको प्रे कर रहे हैं। तो यू आर एक्चुअली completing the circuit of the sun and moon, fulfilling the manifestation code of sun and moon. Intention of manifestation, एक दिल से आप एक डिजायर छोड़ रहे हैं इसको करने के टाइम में कि मुझे ये चाहिए, मुझे एक ईश्वर, मुझे एक जॉब चाहिए। क्यों चाहिए जॉब? ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, लोगों को सर्व कर सकूं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन कर सकूं। जितना बड़ा आपका इंटेंशन होगा उतना बड़ा वो रिसोर्स आपको मिलेगा, वर्च्यू मिलने की चांसेस। अगर आपका सेल्फिश होगा, हो सकता है टाइम लगे। तो मैंने एक प्रोग्राम किया था और एक मेरा कोर्स भी है, डिस्कवरिंग ऑफ योर ब्लूप्रिंट। कभी आपको मौका मिले तो जरूर उसको देखिएगा। उसमें पूरा क्लियरली बताया गया कि आप किस लिए जन्म लिए हैं। आप न्यूमरोलॉजी से भी जान सकते हो उस चीज को, और साथ में आप अपनी सोर्स के साथ अलाइनमेंट करके भी जान सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स बहुत जागृत है। ये अगर आप ये प्रैक्टिस भी करोगे तो हो सकता है आपको भी कुछ सिग्नल्स यूनिवर्स भेजे। तो आपको भी कोशिश करते रहना पड़ेगा। मैं बोलूं ना, दो तरह से, एक है आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, एक हायर सोल स्टैंडिंग कोई है उसके साथ प्रार्थना कर रहे हो, साथ में आपको अपना काम भी करना पड़ेगा। साथ में आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, आपके दोस्तों से बात करना पड़ेगा, नेटवर्क से बात करना पड़ेगा, आपके जो रिलेटिव उनसे बात करना पड़ेगा, लोगों को पता तो चले कि आप जॉब में इंटरेस्टेड हो। आपको अपना टैलेंट लोगों को बताना है, किस तरह से लोगों की लाइफ में परिवर्तन है वो भी साथ में करना है। तो इस प्रक्रिया को कैसे करें? सन को अगर आपको प्रे करना है, नंबर 1 को अगर एक्टिवेट करना है लाइफ के अंदर, और स्पेशली अगर नंबर आपके जन्म के चार्ट में अगर नंबर 1 है, याद रखिएगा टाइमिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम, इवन आप एस्ट्रोलॉजी में जो 10वां घर है हमारा कर्म क्षेत्र है, और जो 11वां घर है वो भी टाइम रिलेटेड है। तो अगर आपको आपका सूर्य, आपका केतु और आपका शनि, इनफैक्ट सारे प्लैनेट अगर आपको मजबूत करने और टाइम कीजिएगा, तो एक टाइम चूज कर दीजिए। ये जो प्रेयर है, ये जो प्रार्थना है, आपको कम से कम 42 दिन इसको करनी होती है। तो आप इसमें क्या करें? इसमें आप एक टाइम चूज कर लेंगे, वो टाइम को चेंज नहीं करेगा। और सबसे बेहतर रहेगा अगर अर्ली मॉर्निंग, जो एकदम सुबह की किरणों को अगर आप पकड़ सकते हैं आपके हृदय में, तो वो बहुत बढ़िया रहता है। तो एक टाइम चूज के लिए, सपोज आपने 6:30 बजे चूज किया करने के लिए, तो 6:30 बजे आप एक ऐसे जगह पहुंच जाइए जहां पे आपको वो सूर्यदेव दिखाई दे। बट नेक्स्ट दिन भी 6:30 टाइमिंग मेंटेन कीजिए, बहुत जरूरी है। अगर आप टाइमिंग मेंटेन नहीं कर पाते तो इस एक्सरसाइज को मत कीजिएगा, बिकॉज
टाइम जब मजबूत होगा आपकी सारी चीजें मजबूत होगी। आप एक टाइम मैट्रिक्स में, स्पेस एंड टाइम कॉन्टिन्यूम में आप आ जाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आपकी जो सारी चीजें, केतु शनि हार्ड वर्क की सारी चीजें एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर। डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होगी लाइफ के अंदर कोई चीज, और आपको ह्यूज, जिन्होंने भी, मेरे जितने स्टूडेंट ने इनको प्रैक्टिस किया है उनको बहुत ज्यादा पावर और ताकत का एहसास हुआ है इसके अंदर। तो आप करके देखेंगे आपको बहुत ज्यादा एक ताकत इसके अंदर मिलेगा सूर्यदेव को करते। तो जैसे ही आप पहुंच गए, आप एक लोटा लीजिए हाथ में, छोटा सा तांबे का, कॉपर का लोटा। लोटे में पानी भरिए। पानी रिप्रेजेंट्स द मून, द चंद्रमा, वाटर एलिमेंट, ऑल द देवतास को उस पानी के अंदर है। पानी में बोला जाता है सारे देव देवी। अच्छा पानी लीजिए, उसके अंदर एक लाल रंग का फूल लीजिए। आप जबा फूल ले सकते हैं या रोज भी ले सकते हैं। जबा फूल डालिए और सबसे पहले आपको क्या करना है, 6:30 बजे जैसे आप उस एक्यूरेट टाइम में आप गायत्री मंत्र जाप कीजिए। गायत्री मंत्र एक बहुत पावरफुल मंत्र है। तो गायत्री मंत्र एक्चुअली सन का ही मंत्र है। तो क्या मंत्र है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो ये मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। तो इस मंत्र का एक सिंपल मतलब, बहुत सारे मंत्र निकल है, एक सिंपल मतलब है, हम पृथ्वी लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करें। ये एक तरह से, बट एक इसका ना बहुत बड़ा मीनिंग है ये जो गायत्री मंत्र का। जब गायत्री मंत्र आप जाप करते हैं, देखिए मैंने पहले ही आपको बताया, हर एक चीज एक फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन रिलीज करते हैं। आपकी मन एक फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन रिलीज कर रही है, आपकी शरीर एक फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन रिलीज कर रही है, आपकी आत्मा एक फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन रिलीज कर रही है। आत्मा में क्या ग्रहण लगा हुआ है, मन में क्या ग्रहण लगा हुआ है, ग्रह ग्रहण लगाते हैं जैसे होते हैं ना, तो ग्रहण क्या लगा हुआ है मन में या शरीर में, उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी कैसे रिलीज होगी। आप अपने मन में क्या नेगेटिव प्रोग्रामिंग करके रखे उस पर भी डिपेंड करता है आपकी तरंगे अच्छी तरह निकल पा रही है नहीं निकल पा रही। जब हम ये जो पावरफुल मंत्र है, गायत्री मंत्र जैसे पावरफुल मंत्र जो एक्चुअली सूर्य के मंत्र है, सवितुर देव, सूर्य देव का मंत्र है, जब इस मंत्र को पहले चांट करते हैं, पहले बोलते हैं पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से, पूरे भक्ति से, क्या होता है हमारी फ्रीक्वेंसी, जो ब्लॉक फ्रीक्वेंसी, उसको तोड़ी जाती है। कोई भी चीज अच्छा पाने के लिए पहले आपको पुरानी जो प्रोग्रामिंग उसको तोड़नी जरूरी है। यही इंटेंशन है जब हम कोई भी चीज में गायत्री करते हैं। अगर आप गायत्री नहीं करेंगे तो सिंपल नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु बोल सकते हैं। विष्णु आपके सबकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। आपकी जो विश है, पॉइजन है, उसको रिमूव करने का काम करते हैं। तो नंबर 5 जहां पे कोई मिसिंग है वो भी कर सकते हैं। तो इसीलिए देखेंगे पूजा करने के बाद हम पंडित लोग हाथ में पानी लेके नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु करते हैं। तो विष्णु का काम है विश रिमूव करना, ताकि हेवन एंड अर्थ के बीच में जो फ्लो है, जो आपका जो प्राणायाम चल रहा है, उसके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सेम चीज इसमें भी आप करें, गायत्री मंत्र का पहले जाप करें। तो गायत्री मंत्र से क्या होगा, जो पहले प्री प्रोग्राम्ड है आपके शरीर के अंदर, उसको एक्टिवेट किया जाएगा। इसीलिए बोला था जब भी कोई बहुत बार गायत्री मंत्र जाप करते हैं, सोल माइंड बॉडी की फ्रीक्वेंसी बदलती है, हृदय का फ्रीक्वेंसी बदलते हैं, इंसान शांत होता है। शांत क्यों होता है कि अंदर जो स्ट्रेस चल रहा है वो रिमूव हो जाता है। जैसे स्ट्रेस रिमूव होता है, विश्व की ऊर्जा, ब्रह्मांड से जो अच्छी ऊर्जा है वो हमारे शरीर में एंटर कर सकती है। तो ये पहले 3 बार आप कर लीजिए, फुल इंटेंशन के साथ, फुल भक्ति के साथ, फुल हृदय के साथ आप इसको जाप लिए। फिर आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। एक मंत्र मैं सजेस्ट करूंगा, ये सारी मेरी सजेशन है, ये मेरी सजेशन है। आप कैसे फॉलो करेंगे, आपका आत्मा, आपका शरीर, आपका मन किसको लेगा वो आपके ऊपर चॉइस है। बट ये सारी मेरी सजेशन है, जो मैं हम्बल सजेशन जो मैं दे रहा हूँ। 7 बार आप एक मंत्र कर सकते हैं, जपा कुसुम मंत्र। उसको मैं हिंदी में आपको दिखा देता हूँ। ये मंत्र है, जपा कुसुम शंका शंकश्यप्यंग महद्गतिम तमो रिम सर्व पापग्नं प्रणतस्मि दिवाकरम। तो इसका क्या मंत्र है, मैं सूर्य से प्रार्थना करता हूं, जो दिन का निर्माण करते हैं, सभी पापों का नाश करते हैं, अंधकार का शत्रु है, जो परम तेजस्वी है, कश्यप ऋषि के वंशज हैं, जो प्रार्थना फूल हिबिस्कस की तरह चमकते हैं, जो ये जो जबा फूल है उनकी तरह जो चमकते हैं। तो सबसे है जो सभी पापों का नाश करते हैं। अब ये पाप क्या चीज है, पाप के वजह से ही तो हमें कर्म मिला है। सो अगर मैं इंटेंशन कर रहा हूं कि मुझे एक जॉब चाहिए, तो जॉब कहां से मिलेगा, जॉब मेरे वर्च्यूज के ऊपर तो मिलेगा मुझे, मेरे वर्च्यू बैंक में मेरे पास क्या अच्छे कामों का क्या लेखा जोखा है, उससे तो मुझे जॉब मिलेगा। तो मैं
एक आदित्य से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे आदित्य, मेरी जो पाप है, मेरे सोल माइंड बॉडी पाप लेवल में जो पाप है, उन सबको रिमूव कीजिए। और फिर एक आप एक इंटेंशन दे रहे हैं, तो ये जपा कुसुम, ये मंत्र आप जाप कर सकते हैं 7 बार कीजिए, क्योंकि हमारे 7 लेयर्स होती है विबजियोर के, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो उनके 7 रेज होती हैं, 7 लेयर, और 7 रेज हमारे 7 चक्रा भी है। तो ये 7 रेज हमारे बॉडी में काम करते हैं, लाइट की तरह हमारे लाइट बॉडी में काम करते हैं। तो आप पहले गायत्री आपने कर लिया, फिर आपने ये तीनों मंत्र 7 बार ये मंत्र जपा कुसुम मंत्र किया, और उसके बाद ना एक हृदय से, एक मैसेज सेंटर से इंटेंशन छोड़िए। इंटेंशन छोड़िए, सिर्फ आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटेंशन सोचिए मन ही मन कि आप ये किस लिए कर रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट एक विजुअलाइज कीजिए, एक सोचिए कि वो चीज हो रहा है, इस वजह से आप इस चीज को कर रहे हैं। इंटेंशन छोड़िए, वो हमारे से काफी ऊपर सोल स्टैंडिंग है, वो हमारी ऊर्जा पकड़ सकते हैं, वो हमारे इंटेंशन समझ सकते हैं। तो उनको ऑर्डर देने के लिए उनको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक मनी मन इंटेंशन छोड़िए, छोड़ के आप 3 बार नमस्कार कर सकते हैं उनको, कि 3 बार नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देके बो डाउन करिए, अपने आप को थोड़ा झुकाइए, अपने स्पाइनल कॉलम थोड़ा झुकाइए। ये आप प्रैक्टिस कर दिए, एक सेट है। अगर आपको इतना बड़ा मंत्र नहीं करना है तो आप ओम सूर्य देवाय नमः भी कर सकते हैं। और हमेशा ना, कहीं पे भी आपको, अगर इंडिया में हो, बाहर हो, सन मत बोलिए, सूर्य बोलिए। हालांकि यहाँ पे मैंने पहले मैनिफेस्टेशन को सन एंड मून बोला है ताकि लोग समझ जाए, बट सूर्य वर्ड की जो ताकत है, अगर आप मेरे न्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट, अगर आपने मेरे न्यूमरोलॉजी में एनरोल किया है कोर्स में, तो आप देखेंगे मैंने नाम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवन सन। आपको समझ में आएगा कि सन और सूर्य में क्या तफावत है, किसमें कितनी ज्यादा पावर है, इसीलिए सूर्य वर्ड को ज्यादा यूज करें। तो अगर आप बड़ा वाला मंत्र नहीं कर सकते तो सिंपली करिए ओम सूर्य देवाय नमः, इसको 7 बार, इसका 7 टाइम्स आप इसको कीजिए। सिंपल रखिए चीजों को, जैसे आप नॉर्मल किसी हायर कॉन्शियसनेस से बात कर रहे हैं। ये आपके अपने कोई है, कोई बड़े कोई है, कोई एक गाइड है आपके साथ, उस तरह कीजिए, वो गॉड है। दिल से दिल मैच कीजिए, हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन कीजिए, नॉर्मल सोल कम्युनिकेशन कीजिए, जैसा आप नॉर्मल बात करते हैं। एक प्रार्थना मोड में आइए आप उनके साथ। और आप सूर्य गायत्री भी कर सकते हैं। तो सूर्य गायत्री क्या है, सूर्य गायत्री इस तरह से, सूर्य गायत्री के काफी अलग अलग वेरिएशन है, तो आप ये वेरिएशन भी कर सकते हैं। ओम भास्कर विद्महे दिवाकर धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। तो और एक वर्षन भी है, आदित्य विद्महे दिवाकर धीमहि तन्नो सूर्य। जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। इसका मतलब है हम तेजस्वी को जानते हैं, हम चमकते हुए का ध्यान करते हैं, सूर्य हमें प्रेरणा दे। सो दीज आर, ये सारी चीजें हैं जो आप बेसिकली अपना कनेक्शन बिठा रहे हो। आप कनेक्शन कैसे बिठा रहे हो? विद द मून। आप चंद्रमा को लेके सूर्य को अर्पित कर रहे हो। तो मदर एंड फादर का कनेक्शन साथ में क्या है? सो ब्रह्मा विष्णु, एक ट्रिनिटी का फॉर्मेशन हो रहा है आपके पास, एक यिन यांग, साथ में आपकी इंटेंशन उसमें डल रही है। तो पानी में इंटेंशन डल रहा है, मन, इमोशन के साथ जुड़ रहा है, सारे देव उसके अंदर है, और वो जा रहा है, अर्पित हो रहा है क्या? सूर्य। तो सूर्य की किरणें के साथ जैसे पानी और एक तरफ सूर्य की किरणें जुड़ रही है, और उसके बीच में आपके इंटेंशन कर रहे हैं। तो समझिए क्या क्या बन रहा है, एक पावरफुल चीज आपके इंटेंशन में कितना 1000 गुना चीज बढ़ रहा है। तो वही तरंगे जा रही है। उसके बाद आप कर सकते हैं द एंड, क्योंकि पानी में हम बोलते हैं कि सब देवता हैं, तो पानी प्रोग्रामेबल है। तो उसके बाद आप बोल सकते हैं सर्वदेव देवी भाय नमः। सो सर्वदेव देवी भाय नमः जैसे बोलो, तो आपने सब देवताओं को उसमें अर्पित कर दो। बहुत लोग बोलते हैं इतना सारे नहीं करना चाहिए, 1-2 देवता नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक साथ सारे देवताओं को भी अपना इंटेंशन भेज सकते हो। पूरी ब्रह्मांड जागृत है, पूरी ब्रह्मांड जागृत है। तो ये एक पावर है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। और उसके बाद आप इस चीज को, पानी को भूदेवी में डाल दें। जस्ट ध्यान रखें वो आपके पैर में नहीं गिरना चाहिए, डिसरेस्पेक्ट होता है। एक स्पिरिचुअल कर्टिसी ये बोलते हैं, पानी को भूदेवी, हमारी श्रीदेवी विष्णु की और भूदेवी 2 देवियां हैं, तो भूदेवी में वो भू में अर्पित हो। क्योंकि आपको जो वेल्थ भी आता है वो धरती से ही आता है, आपकी जो हेल्थ आती है वो धरती से ही आती है। आपकी जो पैरों के चक्र के नीचे से, अर्थ स्टार चक्र से आपके रूट चक्र में आके आपके शरीर में जाता है वो चीज, मैसेज चैनल के थ्रू। तो भूदेवी भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी ऊर्जा एक साथ वहां पे काम कर रही है, और आप अपनी इंटेंशन बड़ा क्लियर रखें। और आप इसको वीडियो को स्टॉप करके आप इनके मंत्र को थोड़ा सा स्क्रीन से डाल लें। अदरवाइज ये मंत्र आपको इंटरनेट में दूसरे जगह पे भी मिल जाएंगे।
बट इसके बाद आपको क्या करना है, 42 दिन तक सेम टाइम में आपको ये सारी चीजें करनी है, अपने आप को एक्सट्रीमली पॉजिटिव रखना है। मैं सोर्स गाइडेंस प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए मैं एक 21 दिन का मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन देता हूं, तो 21 दिन 42 डेज वो मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन आप कर सकते हैं, अलग से एड ऑन मिलेगा। इसके बाद ब्रह्मांड आपको कुछ सिग्नल्स देंगी, उस सिग्नल्स को फॉलो कीजिए। वो आपकी रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम, हमारे शरीर के अंदर रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम होता है। जब रात को सोते वक्त हम जो चीज सोच के सोते हैं वो सुबह हमें दिख जाता है, क्योंकि हमारे अंदर से तरंगे निकलती। तो यहाँ पे बहुत सारे तरंगे काम कर रही है, आदित्य, वाहनी, आपके चंद्रमा की वाइब्रेशन, सारे देव देवी के वाइब्रेशन, तो कुछ ना कुछ घटनाएं हो सकती है। आप अपना कर्म फिर करें, ये हो गया स्पिरिचुअल हेल्प लेना। स्पिरिचुअल हेल्प ले रहे हैं, अब आप अपने से हेल्प लीजिए। आप डायरी नोट डाउन कीजिए, लिखिए आपको किस तरह की नौकरी चाहिए, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपके अंदर क्या वोकेशन है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, इस टैलेंट से आप कितने लोगों को कर सकते हैं, काम शुरू कीजिए। देखिए आपको बहुत सारे, फेसबुक पे जाइए, लिंक्डइन में जाइए, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वहां पे बात कीजिए। किसी कोई ऐसे लोग हैं जो नौकरी, इंडीड में डिफरेंट जगह पे अपना रेज्यूमे डालिए, शाइन है, बहुत सारी चीजें हो रही है, बात कीजिए लोगों के साथ। अपने नेटवर्क को नॉक कीजिए, जहां पे अपने दोस्त हैं उनको बोलिए, जो पुराने, अगर आप जॉब में हैं, कोई आपसे छोड़ के कहीं और चला गया, आप काम कीजिए, यहाँ पे शर्माइए मत। बहुत लोगों का हिकअप्स होता है, अब मैं कैसे बोलूं, मैं नहीं बोल सकता, बट अगर आपको चाहिए सच में तो आपको बोलना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपका अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, लोगों के लिए, बिकॉज आप सर्व करेंगे, आपका सोल सर्व करेगा। आपको थोड़ा एक्टिव होना है, आपको थोड़ा प्रोएक्टिव होना है, वो सारा आप एफर्ट मारिए, सही से इंटरव्यू दीजिए, सच्चाई बोलिए, कोई छुपाने की बात नहीं कभी भी, कहीं पे भी अपने बारे में कोई गलत, अगर आपको कोई चीज नहीं आता बोलिए नहीं आता, बट मैं सीख लूंगा, इसकी इंटेंशन। गलत तरीके से कोई भी चीज मत कीजिए, शॉर्टकट मत मारिए लाइफ में, सही तरह से आप काम करेंगे, बिकॉज आप अभी एक हायर पावर के साथ जुड़ गए। सन, द पावर ऑफ द सन एंड द मून, द मैनिफेस्टेशन कोड आपके साथ काम कर रहे हैं, इसको काम में लाइए, और ईश्वर करे, भगवान करे, सन, सूर्य देव, चंद्रदेव, सारे मिलके आपको बहुत बहुत आशीर्वाद रहे, और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। धन्यवाद, आशा करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत वैल्यूएबल लेसन देने की कोशिश करूंगा, और बहुत सारे लिंक्स हैं नीचे मेरे डिफरेंट सर्विसेज के एंड दूसरे कोर्सेज के। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मैं एक सर्विस करूँ, क्या मालूम किसकी जिंदगी में कोई एक छोटा सा चीज, छोटा सा आइडिया किसी की लाइफ परिवर्तन कर सकता है। तो शेयर इसलिए करना जरूरी है, गुड कर्मा। आप हो सकते हैं बहुत सेटिस्फाइड है अपनी जिंदगी के, तो हो सकता है आपके लाइफ में आप किसी को जानते हैं जो हो सकता है उसको एक ये वीडियो थोड़ा सा काम में आ जाए, कुछ चीजें उसके जीवन में समझ में आ जाए। हम एक जो बहुत ब्रह्मांड, एक मिरेकलस ब्रह्मांड के बीच में, जिसको हम भूल जाते हैं, बिकॉज वी आर वेरी, कभी कभी हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। तो ये हो सकता है ये चीज लोगों के लाइफ में एक नई ऊर्जा, नई चेतना लेके आए, तो आपके एक छोटा सा प्रयास से बहुत बड़ा काम हो सकता है। ओके, यही आपकी आउटर बॉडी है, तो आप सर्व कीजिए, कमेंट जरूर दीजिएगा, अगर किसी ने ये किया, ये एक्सरसाइज किया 42 दिन, उनको उसके लाइफ में कुछ परिवर्तन हो, जरूर लिखिए इसके अंदर। ठीक है, और मैं वेबिनार्स वगैरह लेता रहता हूँ, मेरी वेबिनार्स की आर्काइव भी मौजूद है, कहीं ना कहीं आपको नीचे इनके लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। आप जरूर कोशिश कीजिए इनको सब्सक्राइब करने की, चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, आप सुना आपने मेरी ये चीजें, और आगे भी देखते रहिएगा। सो मे सोर्स, नंबर्स, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, यूनिवर्स ब्लेस यू बियॉन्ड कंपटीशन। आपको, आपके परिवारजनों को बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।